हेलो बच्चों। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ 2021 and 22. I will introduce myself first. My name is Mebin P. Benny and I will be teaching you mathematics for this year. Before starting the chapter, I want you all to buy the books so that you can follow me whatever I am teaching. Along with the book, you should also buy notebooks. You should buy two notebooks, one for the classwork and other for the homework. In classwork, you should write down whatever I am teaching you in the online classes, in the videos. And in the homework copy, you should do the homework that I am giving you every day. And you should submit that notebook to the school as per the school guidelines. Now, we will start with our chapter integers. You all have heard about integers. But before integers, first we need to go and learn is what is numbers. So, when we were young, when we were in nursery, LKG and UKG, the first thing we were taught in mathematics were numbers. What were the numbers we were taught? We were taught 1, 2, 3, 4, 5, 6. And so on. And we were so on taught till like 1000, 10,000, and we learned by each every age we learned different numbers. Okay, but as we reached in fifth class, we read about the types of numbers. So we learned something like natural numbers, correct? Then we learned whole numbers. We also heard about integers in sixth class. We learnt about rational numbers and decimals. Today, in this class, I will revise you in detail what all are these all numbers. So let's start with our class. First, I'll shift my class. Wait a minute. Okay. Yeah. Okay. Now it's fine. Uh, First, we will start with natural number. So, what is natural number? Okay, NATU, this is R. Okay, natural number. What are these natural numbers? So, natural numbers are those number that starts from 1 and goes up to infinity. All the numbers that starts from 1 and are up to infinity are known as natural numbers. I'll write here. You should also note this in your notebooks, and you should understand what are natural numbers. So natural numbers are those numbers. This NO means numbers. This NO is, whenever I write this NO and dot, that means numbers. Okay, natural numbers are those number which starts from 1 and goes up to infinity. What is this infinity? See, infinity is in Hindi we say infinity unginat. The thing which we cannot count, that is infinity. Okay, or in other language, infinity the number where we cannot reach. Okay, in maths we can put any zeros. There is no restriction in putting zeros. Is there any restrictions? कहीं कहीं किसी किताब में ऐसा लिख रखा है कि नहीं 5 जीरो से ज्यादा नहीं लगा सकते या 10 जीरो से ज्यादा नहीं लगा सकते? नो. सो जितना ज्यादा जीरो लगाओगे वो इन्फिनिटी के करीब आता जाएगा. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज नेचुरल नंबर. मैं आपको एक और बार हिंदी में समझा देता हूँ नेचुरल नंबर क्या होता है. ये हमारे लाइफ, पूरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पता रहे कि नंबर्स क्या होते हैं ना. मैथ्स में हम देखो, मैथ समझने के लिए हमें सिर्फ ये 9 डिजिट समझने की बात है.
ये 10 डिजिट है ना, 1 2 3 4, ये 10 डिजिट जो है, अगर हम ये 10 डिजिट समझ गए तो हम थोड़ी बहुत मैथ्स हमारे लिए इजी हो जाएगी, है ना। सो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू infinity. The second is whole number. So now what is whole number? Okay, what is the difference between natural and whole number? Whole numbers are the numbers those starts from 0 and goes up to infinity. मतलब होल नंबर वो है जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं. मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन यू वंस मोर. Whole numbers are those numbers which starts from 0 and goes up to infinity. कोई डाउट? तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या है? जो नेचुरल नंबर है हमारा, जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है, और जो हमारा होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है. नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों ही पॉजिटिव नंबर होते हैं. समझ गए? सब पॉजिटिव ही है ना? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. मतलब 0 को हम ना तो पॉजिटिव मानते हैं और ना ही हम उसे नेगेटिव मानते हैं. ठीक है, सो हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़ लिया. अब हमारा जो चैप्टर है क्या है? वो इंटीजर्स. ठीक है, अब हम उसके बारे में समझते हैं. अब देखो, हमने अभी देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते 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 इंफिनिटी तक जो भी नंबर होंगे हम उन्हें कह देंगे कि ये है नेचुरल नंबर. ठीक है, अब उसमें एक 0 और ऐड हो जाए और अप टू इंफिनिटी हम उन्हें कह देंगे होल नंबर. लेकिन जो हमारे पीछे की वैल्यूज है, मतलब जो हमारी नेगेटिव वैल्यूज है 1 2 3 -4, ये वैल्यूज का क्या? अब इन्हें क्या कहेंगे? अभी तक जो हमने सीखा वो इतना ही था. अब ये क्या? अब ये जो नेगेटिव इंफिनिटी है, मतलब नेगेटिव में जो अनगिनत नंबर है, वहां से सारे नंबर से लेके जो पॉजिटिव नंबर के इंफिनिटी तक जो भी नंबर होगा हम उसे क्या कहेंगे? इंटीजर्स. अंडरस्टूड? चलो एक और बार समझाता हूं ना, इंटीजर्स क्या होता है. देखो, जिसको समझ नहीं आया वो एक और बार अच्छे से समझना ना. इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से, किससे? जो नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी से स्टार्ट होकर, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे करते करते पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ये सब इसके बीच में जो भी नंबर आएगा सब क्या होगा? इंटीजर. समझ गए? चलो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं. अगर मैं यहां लिखूं 7, अब मुझे ये बताओ, सब अपनी अपनी कॉपी में लिखो, ये 7 क्या है? क्या ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, या इंटीजर है? क्या है ये? आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, सोचो और अपनी नोटबुक्स में लिखो कि ये क्या है 7. आई गेस आप सब लोग ने अपना आंसर लिख दिया होगा कि क्या है. क्या 7 नेचुरल नंबर है? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी के बीच में 7 तो आता ही है, आता है ना. 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 आता ही है, तो नेचुरल नंबर तो है. अब होल नंबर, हाँ ऑफ कोर्स होल नंबर भी है, क्योंकि होल नंबर 0 से इंफिनिटी तक होता है और उसमें भी 7 आता है, तो होल नंबर भी है. क्या वो इंटीजर है? हाँ है, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक है, तो उसमें भी 7 आएगा कहीं ना कहीं बीच में, तो हाँ ये एक इंटीजर भी है. तो
एक जो नंबर है, अगर कोई एक नंबर है वो नेचुरल नंबर के साथ में होल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। अगर मैं यहाँ 0 लिखूं, अब आप मुझे बताइए कि ये कौन कौन सा नंबर है। क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या ये होल नंबर है, क्या ये इंटीजर है? मुझे बताइए क्या है ये। ठीक है, जब तक आप बताइए तब तक मैं ये मिटा देता हूँ ना। अपनी नोटबुक्स में लिखिए ये क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या ये नेचुरल 0 नेचुरल नंबर है? क्या 0 1 और इंफिनिटी, क्या 1 से स्टार्ट होने में 0 कहीं आता है बीच में? नहीं। तो ये जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन जो होल नंबर है वो कहां से होते हैं? 0 से स्टार्ट होके यहाँ, तो 0 इंक्लूडेड है ना, तो ये होल नंबर है। इंटीजर क्या होता है हमारा? नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, तो 0 उसके बीच में आता ही है, तो ऑफ कोर्स 0 भी होता है। समझ गए? तो क्या ये नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 0 एक होल नंबर भी है और एक इंटीजर भी है। कोई डाउट नहीं। अब हम हमारा तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा एग्जाम्पल है -2। ओके, अब मुझे ये बताइए कि क्या ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर है? खुद सोचिए, खुद अपना आंसर लिखिए कि ये क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। क्या -2 एक नेचुरल नंबर है? क्या -2, जब आपसे कोई पूछे नेचुरल नंबर, आपको बस ये सोचना है क्या वो 1 से लेके इंफिनिटी में आता है या नहीं आता है। क्या -2 1 से लेके इंफिनिटी में आता है? नहीं आता। क्यों? -2 कहाँ आता है? अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, जो हमने 5th क्लासेस में सीखी है, उसमें 0 होता है, 0 के इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के इस तरफ क्या होता है? सारे नेगेटिव नंबर्स। तो हमारा 1 -2 तो नहीं आता, क्योंकि वो तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्या वो मेरा इंटीजर है? इंटीजर मेरा कहां से कहां तक होता है? नेगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो हाँ, ये मेरा नेगेटिव, इस अगर ये लंबी लाइन एकदम बहुत बड़ी अनगिनत नंबर लाइन बना दे हम, तो ऑफ कोर्स ये उसके बीच में ही आता है, क्योंकि अन इंफिनिटी तो सबसे इस तरफ आएगा और इंफिनिटी इस तरफ आएगा। तो हाँ, ये एक इंटीजर है। क्या ये एक होल नंबर है? होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, है ना। तो लेकिन 0 से इंफिनिटी तो यहीं रह गया, तो ये हमारा होल नंबर भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है? इंटीजर है। तो क्या एक कोई भी नंबर, वो देखो अब इससे हमें क्या पता चला, कोई नंबर ऐसे हो सकते हैं जो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं और इंटीजर भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे नंबर भी हो सकते हैं जो सिर्फ होल नंबर और इंटीजर हो सकते हैं। ये सिर्फ 0 के साथ में ऐसा केस होगा जो होल नंबर और इंटीजर होगा, और एक ऐसा कोई भी ऐसा नंबर भी हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हो सकता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो आप लोगों को एक बार तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, आप उसमें अपना डाउट लिख के डाल सकते हो। इसके अलावा हमारी एक जूम क्लास होगी जो डाउट सेशन क्लियर करने के लिए होगी, उसमें भी आप मुझसे अपना ये, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो हमने अभी तक नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर देख लिया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, जो हमने पहले भी पढ़ा है फ्रैक्शंस के नाम से, है ना, पढ़ा है ना, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे करके हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। रैशनल नंबर क्या होता है? अब देखो, हमने सारे नंबर गिन लिए, हमने नेगेटिव इंफिनिटी से लेके ऐसे 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 करते करते, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे करते 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 इंफिनिटी तक सारे नंबर देख लिए। बट इन नंबर के बीच में भी तो कुछ नंबर होंगे, हो सकते, जैसे क्या 0 के बाद 1, 0.1 भी तो होता है, 0 पॉइंट, हम इसे नंबर्स, ये हमारे ना तो होल नंबर है, ना इंटीजर है, और ना नेचुरल नंबर है। इन्हें हम कहते हैं, ये हम जैसे 0.1 लिखा है, ये है हमारा डेसिमल नंबर,
है ना, क्योंकि 0.1 है। तो रैशनल नंबर क्या है? इन डेसिमल नंबर को देखो 0.1 लिखा है, अगर मैं इस 1 को यहाँ से हटा दूं और नीचे मेरे को क्या लगाना पड़े, अपॉन 10, ये क्या बन गया 1/10। और ये 1/10 क्या है? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी नंबर, रैशनल नंबर की डेफिनेशन, ठीक है, रैशनल नंबर कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू मतलब ऊपर भी एक नंबर नीचे भी एक नंबर, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल 2/3 है ना, ऊपर भी एक नंबर है नीचे भी नंबर है, एक डिवाइजन का साइन है। अगर कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है तो हम उसे कहते हैं रैशनल नंबर। जैसे अभी हमने देखा हमारा ये 1/10 है ना, ये p बाई क्यू के फॉर्म में था, यहाँ ऊपर भी एक नंबर 1 है और नीचे एक 10 है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन देखो रैशनल नंबर में ये जो ऊपर वाला p होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो हमारा q होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, कोई डाउट? देखो p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, एक्सेप्ट एक कंडीशन है, क्या? कि q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर q जीरो हो जाएगा तो हमारा ये जो p बाई क्यू पे जो भी नंबर होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड। ओके, क्यों? अब मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बेसिक के समझने के लिए। कभी भी कोई भी नंबर में अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो वो मैथ्स में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्यों नहीं करती? क्योंकि देखो अब 2 को ना 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। कर सकते हो क्या? 0 इंटू 0 0, वापिस 2 आएगा 0 0, ये चेन चलती जाएगी, ये चेन खत्म नहीं हो सकती, ये एक अनडिफाइंड नंबर है। तो 2/0 इज अनडिफाइंड बट 0/2 इज ऑलवेज डिफाइंड, ठीक है। 0/2 इज डिफाइंड एंड 0/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आई गेस आप ये भी रैशनल नंबर भी समझ चुके होंगे। मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स आर those numbers which are in the form of p by q where p and q can be any integer except q equal to 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -7/2, 3/2, 8/9, 7/2 एक्सेट्रा, कुछ भी एग्जाम्पल, बस नीचे q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी यहां कोई भी इंटेजर हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, अब हम आगे चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, दैट इज डेसिमल्स। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल ये वाली चीज जो नंबर पॉइंट के बाद में होती है, उसे पॉइंट्स में होती है, हम उसे डेसिमल्स कहते हैं, ठीक है। अब कल हम हमारा चैप्टर इंटेजर्स अच्छे से स्टार्ट करेंगे। सो आज ये आपके लिए एक बेसिक रिव्यू क्लास थी जिससे हमें पता चल सके कि हम कौन सा नंबर क्या है, ठीक है। सो कल हम हमारी एक्चुअल क्लास स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो कल हम इंटीजर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स and or you can ask me directly. Do make sure you make the notes of all this thing. Thank you.